Welcome to the second part of the explanation of the chapter Poets and Pancakes by Asoka Mitran. Now, we move on to the story department of the Gemini Studios, from the makeup department to the story department. Now, any story department that we know will always consist of writers and poets. So, nothing was new here, but what was new was that the story department at Gemini Studios had a lawyer also. He was also known as the legal advisor. तो स्टोरी डिपार्टमेंट में पोएट्स और पैनकेक्स ही होते हैं जनरली, मगर इस स्टोरी डिपार्टमेंट में एक लॉयर भी थे एंड द लॉयर वाज कॉल्ड लीगल एडवाइजर. बट वी विल सी दैट people did not think of him to be a legal advisor. Why? Because of an incident. एक घटना घटित हुआ जेमिनी स्टूडियोज में उन दिनों. एक नई नई एक्ट्रेस थी, वो काफ़ी गुस्सा करती थी और एक दिन शूटिंग के वक्त वो गुस्सा हुई, बहुत उल्टा सीधा उन्होंने कहा भी, और ये लॉयर उनके सारे बातों को रिकॉर्ड कर लिया और जब वो शांत हुई तो इस रिकॉर्डिंग को सुना दिया, जिसके फलस्वरूप उस एक्ट्रेस को वहां से जाना पड़ा और एक करियर शुरू होने के पहले ही उसका अंत हो गया. शी हैड टू एंड हर करियर. व्हाई? बिकॉज ऑफ अ लॉयर. सी दिस नाउ. It so happened that once an actress who easily got irritated and got angry on the set one day. The lawyer recorded everything. Although she hadn't said anything wrong about the producer. Producer के बारे में उसने कुछ गलत नहीं कहा था. But her career came to an end. This lawyer was also a different identity. एक तो वो, दूसरा, this lawyer, he was different from other members of the story department. क्यों? क्योंकि other members या बाकी लोग जो थे वो खादी पहनते थे और गांधी जी के फॉलोअर थे. And this lawyer, he used to wear pants and ties, and also sometimes he used to put on coat. ये tie लगा था, pants और coat पहन थे. So why he was different? Because everyone wore khadi and he wore pants, tie and sometimes coat. He was also allowed to produce a film, being close to the boss. अब ये lawyer boss के काफी नजदीक था, तो once he was also given a chance to produce a film, and the film did not do well. So one day, the boss decided to close the story department. So everybody has to go from there. Sorry, everybody had to go from there. And imagine, in history, it would be the only case where a lawyer had to lose his job because the story department came to an end and the writers and the poets were asked to go home. So if a question comes about the lawyer, a little bit of character sketch or a 3 marks question about him, I hope you would be able to answer. Let's move on to the next topic. Now, about the writers and poets, we are going to discuss about the writers and poets who visited Gemini Studios from time to time. Remember one thing, that in those days Gemini Studios had a very good mess, canteen, that served coffee for almost the whole day and late part of night also. So the poets and writers gathered there to have a cup of coffee and discuss whatever they had. एक अच्छा खासा मेस हुआ करता था उन दिनों जेमिनी स्टूडियोज में, जहां अच्छी कॉफी मिलती थी, जिसके कारण पोएट्स एंड राइटर्स का जमावड़ा होता था वहां पे अपनी बातों को डिस्कस करने के लिए. काफी लोग आते थे और अप्रिशिएट भी करते थे एक दूसरे को. सिर्फ वो क्लर्क और ऑफिस बॉयज, ये लोग ज्यादा पोएट्री डिस्कस नहीं करते थे. एंड जितने लोग वहां इकट्ठे होते, पोएट्स एंड राइटर्स, almost all of them, they wore khadi. They were called khadiites also, and they worshipped Gandhi ji. But they did not believe in politics. उन्हें राजनीति से कोई लेना देना नहीं था. उन दिनों कांग्रेस भी उतनी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही थी देश में, बट गांधी जी के लोग फॉलोअर्स थे, उनको मानते थे, उनको पूछते थे, और इसीलिए वे खादी वस्त्र पहनते थे. एंड दे वोर खादी बिकॉज ऑफ गांधी जी.
उसी समय एक नई विचारधारा, a new thought came into existence, and that was the thought of communism. What is communism? It's a group of political social system that had a communist political philosophy. आज के डेट में हम उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से जानते हैं भारतवर्ष में और दुनिया में। लेनिन और मार्क्स कुछ दो ऐसे लोग हैं जिन्होंने कम्युनिज्म का की वकालत की, मगर ये कम्युनिस्ट लोगों को अच्छे दृष्टि से, अच्छी नजर से नहीं देखा जाता था देश में। पीपल डिड नॉट रिस्पेक्ट देम। व्हाई? बिकॉज पीपल थॉट दैट द कम्युनिस्ट वर गॉडलेस पीपल। ये भगवान में विश्वास नहीं करते, गॉडलेस पीपल। दे डिड नॉट हैव एनी लव एंड रिस्पेक्ट फॉर द चिल्ड्रन और द मैरिड लाइफ। बच्चों के प्रति, वैवाहिक जीवन के प्रति इनका कोई आदर या सम्मान नहीं था। दे डिड नॉट इवन रिग्रेट किलिंग देयर ओन पेरेंट्स और चिल्ड्रन। ये लोग अपने बच्चों को, अपने माता पिता को भी मारने में संकोचाते नहीं थे। ऐसा उस जमाने में लोग कम्युनिस्ट लोगों के बारे में सोचते थे। दे ओनली मेंट अनरेस्ट एंड वायलेंस अमंग इनोसेंट एंड इग्नोरेंट पीपल। अच्छे लोगों के बीच में कैसे उत्पात मचाया जाए, अनरेस्ट फैलाया जाए, अशांति फैलाई जाए, शायद ऐसा ही मकसद कम्युनिस्ट के लोगों की थी उस जमाने में, जैसा लोग सोचते थे। इसीलिए डरते भी थे और सम्मान भी नहीं करते थे कम्युनिस्ट विचारधारा वाले लोगों की। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे MRA के बारे में और फ्रैंक बुकमैन्स मॉरल रिआर्ममेंट आर्मी। फ्रैंक बुकमैन्स एक बंदे का नाम है और उनकी एक फौज थी छोटी सी 200 पीपल की, जिसका नाम था MRA और Moral Rearmament Army. When the philosophy of communism was growing, it is said that MRA was a kind of counter movement to international communism. And the big bosses, including Mr. Wasson, the founder of Gemini Studios, played into their hands. तो ये MRA जो थी वो बेसिकली ऐसा माना जाता था कि कम्युनिस्ट विचारधारा के लोगों को काउंटर करने के लिए बनाया गया था, और बहुत सारे लोग जो कम्युनिस्ट विचारधारा को सपोर्ट नहीं करते थे वो चाहे अनचाहे MRA के सदस्य थे या MRA वालों के हाथों के कठपुतली होते थे। But the staff of Gemini Studios had nothing to do with all these things. They were happy to host the 200 people of the MRA of at least 20 nationalities. Gemini Studios के लोगों को इन सब बातों से, MRA वाले से कोई लेना देना नहीं था। They were happy that they were host of 200 people. 20 अलग अलग नेशनैलिटीज, देशों के लोग थे और वो वहां पर प्ले किए, काफी दिन ठहरे। दो प्ले जो काफी फेमस हुआ परफॉर्म्ड बाय द MRA वाज एक जॉथम वैली और दूसरा द फॉरगॉटन फैक्टर। इन दो प्लेस से ये तमिल वाले बहुत कुछ सीखे एंड स्पेशली अबाउट द सेट्स एंड द कॉस्ट्यूम्स that was used by them. They also used it in the Tamil plays. Now, visit of Stephen Spender to the Gemini Studios. This writer, a British poet, writer, and editor, he visited the Gemini Studios. But जब वो visit किए, किसी ने इनका नाम नहीं सुना था और किसी को पता तक नहीं था who was he. Even the boss, SS Wasson, also did not know much about him. उन्हें भी जानकारी नहीं थी। कैसे पता? Because in the introductory speech, जब वो उनका परिचय करा रहे थे ऑडियंस से और डायस से, पोडियम से जब उन्होंने उनका परिचय पढ़ा तो वो भी कुछ ज्यादा नहीं बोले उनके बारे में। Now there was a great buzz that an English poet was to visit from England. Later they knew he was an editor. He came, lectured, talked to the audience, a dazed and silent audience. जब ये English editor बात कर रहे थे दर्शक से, words mentioned in the book, dazed and silent audience. दर्शक दीर्घा बिल्कुल शांत थे। क्यों? Because he spoke in English and second, his accent, उनके उच्चारण करने का तरीका। ये दो बातें ऐसी थी जो वहां ऑडियंस को समझ में ही नहीं आई। Why? Because the audience consisted of Tamilians. उन्हें तमिल आती थी और ये इंग्लैंड से आए थे और सिर्फ इंग्लिश कहा, और वो भी एक ऐसे एक्सेंट में, एक ऐसे उच्चारण में जो आम इंडियन
कि समझ से बाहर की बात थी. फिर इट रिमेन्ड अ मिस्ट्री व्हाई ही हैड कम. वो जेमिनाई स्टूडियोज के लोगों के बीच में अंत तक ये रहस्य ही रहा कि उनको क्यों बुलाया गया था. उन दोनों की एक बात है. there's another incident. The Hindu, a very popular newspaper in those days, had published a tiny announcement in an insignificant corner of an unimportant page about a short story contest by a British periodical by the name The Encounter. द हिंदू उस जमाने का एक प्रतिष्ठित अखबार, उसके किसी एक पन्ने में, किसी एक कोने में एक कॉन्टेस्ट के बारे में निकला था. वो कॉन्टेस्ट द एनकाउंटर नाम से होना था और उस कॉन्टेस्ट का मकसद था, वो एक शॉर्ट स्टोरी के लिए था. व्हेन द नैरेटर अशोका मित्रन साहब वही उस दफ्तर में जब जानकारी इकट्ठा करने गए थे कि कैसे भेजना है उस प्रोज को इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए, उस दफ्तर में इन दैट ऑफिस ही सॉ सम न्यूज़पेपर्स, द एनकाउंटर, एंड देयर ही सॉ the name of the editor of the newspaper, and it was Stephen Spender. He was so happy. Why? उनको लगा कि एक पुरानी हिंदी फिल्म के जैसे पहले सीन में दो भाई बिछड़ गए और लास्ट सीन में दोनों भाई, एक म्यूजिक बजा, सिमिलर गाना बजा जैसे करण अर्जुन टाइप का, और दोनों मिल गए. क्यों? क्योंकि वो एक बार आए थे जेमिनाई स्टूडियोज में और इन्होंने उनको देखा था. बस इसी बात की खुशी हुई कि मैंने जिसको देखा था, जिसको जानता हूं, वो ही बंदा इस न्यूज़पेपर का एडिटर भी है. एंड देन वी कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ द डिस्क्रिप्शन. हमारे राइटर साहब एक रिटायर्ड लाइफ जी रहे थे. पैसे की उन दिनों कमी थी उनके पास, तो एक बार वो एक बुक खरीदे और बुक का टाइटल था द गॉड दैट फेल्ड. इस बुक की खासियत ये थी कि 6 अलग अलग राइटर्स, 6 डिफरेंट राइटर्स had written 6 different short essays. When he was going through the name of the writers, नाम जब पढ़ रहे थे, तो he saw that one of the writers is Stephen Spender also. And this is how he came to know that the person who had visited at Gemini Studio was Stephen Spender, and he was a very famous person whom he had seen and met once, and that made him very happy. So thank you very much, children, for listening it patiently. Please read your books once again, I would say, and go through the question answers. Thank you very much.